Now, friends, we already have our guest with us, Ms. Juhi Garg. She's co-founder, ED Times, a youth media startup. Hi, Mr. Juhi. Good morning. How are you? Well, very well. How are you? I'm good. I'm good. So long. We are really happy to see you back. And Ms. Juhi, we would really, I would request you to address and answer me in Hindi, if that is possible. No problem. So, Ms. Juhi, over to you. You can start introducing, and then I'll be asking you a few questions. We'll be having a conversation session between us. But meanwhile, I would like you to start with exactly how you started and what is your company all about. Hello everyone, and मैं कोशिश पूरी करूंगी और ज़्यादा अगर इंग्लिश होगा तो आप बता दीजिएगा. I'll try and make it in Hindi. मैं एक यूथ मीडिया स्टार्टअप रन करती हूँ, ED टाइम्स, एंड ये न्यू मीडिया कैटेगरी में आता है. सो जैसे ट्रेडिशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस हैं, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये 100 सालों से चले आ रहे हैं. बट आज क्योंकि डिजिटल एक बहुत बड़ा एरा है एंड एवरीबडी हैज शिफ्टेड टू डिजिटल कंटेंट एंड डिजिटल न्यूज, सो देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस. जो अभी मैम समझा रही थी, strengths and opportunities, we saw an opportunity where we could do news content for young people in the kind of way that they like to consume news. तो जैसे जनरल न्यूज होता है या फाइनेंशियल न्यूज होता है, इकोनॉमिक न्यूज होता है, वो थोड़ा सा आई वुड से यंग लोगों के लिए, मिलेनियल्स के लिए थोड़ा सा heavy हो सकता है. So we tried to make it a little more simpler for young people to understand and talk in their language. Just hold on, just a second. फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है जूही जी के कुछ, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट. शी विल बी देयर टू क्लियर योर डाउट्स. आपको कुछ भी, कहीं पे भी कोई डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है उनसे, just raise your hands. We'll give you the mic and you can always speak to her. Yes, I'm sorry about this. There was a technical glitch. So that was the opportunity we saw, and obviously हम अभी भी mainstream media से compete जरूर कर रहे हैं क्योंकि वो भी अब digital platform पे आ गए हैं. They're also very popular on their websites. But for a long time, they were only on electronic TV and in print, that is the newspaper. They also understood that the newer generation or the future is digital. Digital news will work. People are no longer subscribing to Tata Sky, or I mean, they're subscribing less, I would say, to mainstream television. They're going for Netflix या इस type का content देख रहे हैं. और अगर news होता है तो वो online news consume करते हैं more than newspapers and television. So that is where we saw this opportunity, and we were able to start around 4 years back. Amongst young people, a lot of college students and all, हमने अपनी थोड़ी बहुत decent जगह बनाई है. और यहाँ पे I'm so grateful. Thank you so much for inviting me to share whatever I've learned on the way as a woman entrepreneur and as an entrepreneur. So it's not about gender only. I think as an entrepreneur, जो भी मेरी learning हुई है, I'm more than happy to share with all of you. Thank you, Juhi. Ms. Juhi, I would again request you to please just moderate in Hindi. Hindi. Okay. I know we have this habit of shifting back. हाँ, English में आ जाते हैं. नहीं, I'll speak. मैं हिंदी में ज़्यादा करूँगा. Yeah. So I would मैं भी हिंदी में I think question पूछूंगी तो you'll be back to Hindi. So Juhi जी, आपने कब start किया था अपना venture? At what age? And what exactly the difficulties you face? क्या आपने problems face किया when you started your business? तो मेरा ये second entrepreneurial venture है. First was when जब मैं 27 years की थी, and before that I was very sure कि even अगर मुझे अपने काम में आना भी है तब भी मैं पहले जाके जॉब करूंगी. I will try and get experience, क्योंकि जो एक्सपीरियंस जॉब में आता है, जो बाहर जाके सीखने को मिलता है, जो किसी के अंडर काम करके आता है, वो अपने काम में कभी नहीं आता है. अपने काम में सारी जो नॉलेज होती है वो यूज अप हो जाती है. दी ओनली बाहर जाके जो हमें लर्निंग मिलती है वो हम अपने बिजनेस में लगा सकते हैं. सो टिल आई थिंक 25 या 26 तो मैंने आई वर्क विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट ब्रांड्स एंड कंपनीज के साथ मैंने काम करा. और 26-27 आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वेंचर. दिस वाज वी वर अगेन ये सर्विसेज में था.
इंडस्ट्री में हम लॉ फर्म्स को, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स को एडवाइस करते थे ऑन मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट। तो हम एक कंसल्टिंग फर्म थे ओनली टू कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स। ये काफी अच्छा एक सर्विस इंडस्ट्री में बिजनेस था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स वर बूमिंग। दे डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था हाउ टू मेक देयर बिजनेस वेरी स्ट्रीमलाइंड, कैसे प्रोफेशनली एक फर्म को रन करना है, कैसे बहुत बड़ा बनना है और एक ग्लोबल फर्म बनना है, जबकि काम वो अच्छा कर रहे थे। सो दीज वर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी वर एबल टू ब्रिंग टू द टेबल। दैट बिजनेस इज आल्सो रियली गुड एंड आई हैड टू एग्जिट आउट ऑफ इट। मैं उनकी इंडिया पार्टनर थी उस फर्म की, लेकिन मैंने 3 साल बाद उसको एग्जिट करा था ऑन अ वेरी गुड नोट। मतलब देयर वाज नो इशू दैट आई कुड हैव कंटिन्यूड रनिंग दैट बिजनेस। एंड सेकंड मेरा फिर ईडी जब मैंने स्टार्ट करा था, ईडी टाइम्स, this was started again 4-5 years back। एंड इसमें अगेन जब अपॉर्चुनिटी हमने देखी कि कंटेंट इतना सारा है ऑनलाइन, यंग लोग पूरे टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, लेकिन वो किस टाइप का किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बहुत सारा बसफीडी या फन कंटेंट बहुत था, टिकटॉक टाइप कंटेंट बहुत था। उस टाइम तो टिकटॉक नहीं था, बट इस टाइप का कंटेंट बहुत था, एंटरटेनमेंट रिलेटेड था। तो हमें लगा कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है जहां हम यंग लोगों के लिए स्मार्ट कंटेंट उनके तरीके से कर सकते हैं, एंटरटेनिंग तरीके से अगर प्रेजेंट करते हैं, तो वो ऑनलाइन जब बैठे हैं पूरा टाइम अपना व्यतीत कर रहे हैं उस पर, वो कुछ नॉलेज पा सकते हैं बिना जाने कि उनको नॉलेज मिल गई है। वो कुछ स्मार्ट आइटम रीड कर सकते हैं जिससे उनकी लाइफ में कुछ ऐड हो, उनको कोई वैल्यू मिले, नॉलेज मिले। तो उस आइडिया से हमने ये 4-5 साल पहले स्टार्ट करा। चैलेंजेस तो बहुत आए, ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है जिसमें चैलेंज नहीं आती हैं, सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। सर्विसेज में थोड़ा ही ज्यादा वो था कि डिफरेंशिएटर क्या है, आप अलग क्यों हैं, आपको क्यों पड़े, हम टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी को छोड़ के ईडी टाइम्स क्यों पड़े, ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, या एक हैबिट बनाना या एक कस्टमर को अक्वायर करना, ये सब चीजें थोड़ी इनिशियली आई वुड से 1-2 साल हर बिजनेस में बहुत चैलेंजिंग रहता है। अपने आप को स्टैंड आउट कराना, अपना फर्स्ट क्लाइंट को ढूंढना, उस क्लाइंट, ऑफ कोर्स एक बार जैसे आपने बोला, वंस यू आर एबल टू सेटिस्फाई अ क्लाइंट, एक आप अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं, उसके बाद वो क्लाइंट आता है, उससे आपको और क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन वो जो अपना फर्स्ट मार्क होता है वो बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है। अपनी जगह बनाना, अपना ब्रांड बनाना इन द मिडल ऑफ सो मेनी बिग नेम्स। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी इंडस्ट्री थी मीडिया की वहां पे कोई नहीं था कि अच्छा चलो हमें फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिल गया, जैसे पेटीएम है, पेटीएम जैसा कोई नहीं था, तो जब पेटीएम आया एवरीबडी जम्प्ड ऑन दैट। अब हमारे साथ क्या था कि देयर वाज ऑलरेडी द बिग विग्स एंड इवन इन न्यू मीडिया देयर वर द अदर प्लेयर्स जो काफी एक फंडिंग से सपोर्टेड थे, बड़े ब्रांड से सपोर्टेड थे, तो उनके पास पूरा पैराफर्नीलिया था टू स्टेप इनटू द मार्केट विद अ बिग बैंग। अब हमारे जैसे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हु आर हु डोंट रियली टेक आउटसाइड फंडिंग, हम अपनी तरीके से ही रन करना चाहते हैं, तो हम जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाते बाहर, हम स्लोली चलते हैं, लेकिन उसमें यही चैलेंज होता है कि आप पीछे ना रह जाएं। तो हर बार अपने आप को इनोवेट करना, हर बार बड़े प्लेयर से compete करते हुए अपने आप को रेलेवेंट रखना मार्केट में, दिस इज अ कांस्टेंट चैलेंज जो पहले दिन भी आता है और हमेशा बिजनेस के हर साल में आता है कि नाउ व्हाट न्यू आर वी डूइंग सो दैट वी स्टे रेलेवेंट। That's really great, because surviving in this kind of, especially in media, is tough, because we have a lot of competitors, and coming from a very short thing is really a huge challenge. And definitely, Ms. Juhi, you have done wonders. I was just thinking, you were into law firm, आप law firm में थे, और अचानक से at that age, I mean 27, you were so young, और वो एकदम से जंप किया आपने मीडिया। So why, like, it's like falls apart? मेरी एजुकेशन वहाँ रही, तो मैं थोड़ी लकी हो गई। स्कूलिंग के बाद मैंने जर्नलिज्म ऑनर्स करा था, एंड उसके बाद वही कार्टून नेटवर्क, HBO, टर्नर, इन सब के साथ काम करा, हिंदुस्तान टाइम्स एंड ऑल, तो मीडिया एक्सपीरियंस था और मीडिया एजुकेशन थी। मीडिया का बैचलर्स करने के बाद आई डिडंट रियली गो फॉर मास्टर्स ऑफ मीडिया, आई वेंट फॉर मास्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ from National Law School, Bangalore. So that is where the legal aspect came in.
And because I was in the world of law, it was important कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा मीडिया एक्सपीरियंस भी खराब ना हो और जो मैंने लॉ की डिग्री भी ली है वो भी काम आए। तो मेरे को ये लगा कि मैंने कंसल्टिंग कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, तो जो मुझे एक्सपोजर मीडिया में आया था अबाउट हैंडलिंग पीआर एंड कम्युनिकेशंस एंड मार्केटिंग एटसेट्रा, वो मैं लॉ फॉर्म्स और लॉयर्स की लाइफ में ला पा रही हूँ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर वर्क, द काइंड ऑफ डील्स दे डू। उसके लिए बेसिक नॉलेज अबाउट लॉ होना काफी इंपॉर्टेंट था। सो माय एमबीएल डिग्री एंड माय जर्नलिज्म ऑनर्स कंबाइंड वेरी वेल इन एज, व्हिच वाज माय लॉ फर्म कंसल्टिंग बिजनेस। और उसके बाद ईडी तो वाज लाइक क्वाइट ऑब्वियस फॉर मी, क्योंकि जर्नलिज्म ऑनर्स करा हुआ था, मीडिया का एक्सपोजर था, तो मीडिया थोड़ा बहुत कंटेंट कैसे करना है, क्या है, हाउ कैसी चीजें चलती हैं, उसका थोड़ा सा नॉलेज था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जॉब्स और इंटर्नशिप दैट आई हैड डन। एंड दैट इज व्हाई मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ कि एजुकेशन के बाद एटलीस्ट 4 से 5 साल तो सिर्फ कहीं जाके काम करना चाहिए, क्योंकि वहां जो लर्निंग आएगी वो पूरी लाइफ में कभी नहीं आती, स्पेशली इनिशियली आपको सब कुछ करने को बोलेंगे। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। आप जब एक बहुत सीनियर बन जाते हैं, मिडिल मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट बन जाते हैं, तो आपके रोल्स बड़े डिफाइंड हो जाते हैं। अगर आप मार्केटिंग करें तो आप सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, लेकिन जब आप जूनियर रोल्स में होते हैं तो आप हर एक डिपार्टमेंट में जाके यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट इज वेयर यू लर्न सो मच एंड इतना सारा लेने को मिलता है जो कल आपके बिजनेस में सब कुछ काम आता है। एंड दैट इज व्हाई मेरी जो भी ट्रेनिंग रही, आई वुड से इन माय इंटर्नशिप्स, दैट केम वेरी हैंडी इन बोथ माय बिजनेसेस। Great. Abhishek sir, there's like I can see a hand raised. Call him into the panel. Meanwhile, I'll again ask you one thing, Miss Juhi. देख, हम लोग हमेशा सिखाते हैं कि सॉर्ट करना चाहिए आपको अपने opportunities you told me, challenges you told me, but what about the strength and weaknesses? क्या really you did all this because this is what we have been telling our participants? सॉर्ट करना चाहिए, बिजनेस का भी सॉर्ट करना चाहिए, सेल्फ का भी करना चाहिए. So did you also do that before going for it? आई थिंक स्वॉट, यस डेफिनेटली स्वॉट एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका है एंड वो करना जरूर चाहिए। द ओनली थिंग इज कि मैं जिस तरीके से उस टाइम सोचती थी वो ये था कि वी कांट बी इमोशनल अबाउट एनी डिसीजन, कि अच्छा मेरे को लगता है मैं इस चीज में बहुत अच्छी हूँ या ये चीज जरूर चलेगी तो मेरे को बस करना चाहिए। आई थिंक बिना एक अपॉर्चुनिटी को टेस्ट करे, हमें लगता है अपॉर्चुनिटी, हमें लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन जब तक कोई पेइंग कस्टमर उसको प्रूव ना करे तब तक वो एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं और तब तक वो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आई थिंक मेरे लिए ये जरूरी था कि मेरे को लगता है इस चीज की मार्केट है, लेकिन दो टाइप के मेरे कस्टमर है, एक मेरा रीडर कस्टमर है और एक पेइंग कस्टमर है हु पेज फॉर द रनिंग ऑफ ईडी। जब तक वो दोनों कस्टमर्स मुझे प्रूव नहीं करते कि हाँ देयर इज अ मार्केट फॉर व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू द टेबल, तब तक आई थिंक मेरे थिंकिंग में है कि ये चीज चलेगी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट रिसर्च वगैरह इज ऑल गुड, लेकिन आई थिंक जब तक आप रियली में मार्केट में जाके एक छोटा सा पायलट नहीं करते हैं, छोटा सा टेस्टिंग नहीं करते हैं, आप ये नहीं देखते कि यस इज समबडी रेडी टू टेक आउट मनी एंड पे मी, क्या कोई पैसे निकाल के मुझे देने को तैयार है मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और क्या वो देता रहेगा, उससे क्या मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊंगी या अपने बिजनेस को, तब तक आई थिंक हम अपने आप को कन्विंस जरूर कर सकते हैं, लेकिन वी डू नॉट गेट द रियल आंसर टू द टेस्ट। सो आई फील कि बिफोर रियली गेटिंग इनटू एनी बिजनेस, इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल अबाउट द डिसीजन कि हाँ मुझे पता है, अगर 10 लोगों से बात कर ली, फ्रेंड्स एंड फैमिली में बात कर ली, अच्छा मैं ये करूंगी तो आप खरीदोगे, वो बोल देंगे जोश में हाँ खरीदेंगे, लेकिन वो आपके रियल कस्टमर्स नहीं है। दे कैन एनकरेज यू इनिशियली, लेकिन कल जाके जब आप मार्केट में जाते हैं, समबडी हु डजंट नो यू, आप उन्हें कन्विंस करके क्या अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच पाते हैं कंटिन्यूअसली, वो चीज का जब एक बार छोटा सा पायलट या छोटा सा टेस्ट हो जाए, मेरे हिसाब से उसके बाद ही बिजनेस का डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि इवन इन द जर्नी, अब हम 5 साल से हैं, हमें बार बार अपना मॉडल थोड़ा करते रहना होता है टू नॉट जस्ट स्टे रेलेवेंट, बट कस्टमर और मार्केट के रिस्पॉन्स के हिसाब से हमें अपने आप को मोल्ड करते रहना होता है। हमें लगता है ये चीज चलेगी, लेकिन मार्केट बताती है, कस्टमर बताता है कि क्या चलेगी और किस चीज के लिए उन्हें पैसे देने हैं। एंड इतनी बार होता है कि यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको लगेगा ओ ये कंटेंट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये स्टोरी बिल्कुल वायरल नहीं जाएगी, और वो वायरल चली जाएगी, एंड यू नॉट इवन
नो कि ये वायरल क्यों गई, या आपको लगेगा आपने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है, ये सर्विस इंट्रोड्यूस करी है, ये तो बहुत अच्छी चलेगी, लोगों को बहुत जरूरत है इसकी, ये तो है ही नहीं इंडिया में, ये तो है ही नहीं मार्केट में, एंड लोगों को कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो आई थिंक मार्केट आपको बताता है, कस्टमर आपको बताता है कि किस चीज की नीड है और क्या चीज चलेगी। Miss Jui, I would like to ask you the USP of your business. क्या है आपको? अभी बस मैं अपने फ्रेंड्स को बता रही थी USP के लिए कि बहुत जरूरी है सरवाइव करने के लिए. You have to have a USP. So what is your USP? I feel again, you know, it's going to be हमें तो अपना बिजनेस सबको ही अच्छा लगता है, सबको अपना काम बेस्ट लगता है, लेकिन अगर मैं सोचूं तो मेरा यूएसपी ये रहेगा कि हम कंटेंट कर पाते हैं, स्मार्ट कंटेंट, इंटेलिजेंट कंटेंट, थोड़ा टेक्निकल भी हो सकता है, बट हम उसको इतने सिंप्लीफाइड तरीके से करते हैं कि एवरी रीडर कैन अंडरस्टैंड इट एंड टेक समथिंग बैक। हम उसको थोड़े बहुत एक सिंप्लीफाइड और एक एंटरटेनिंग तरीके से कर पाते हैं, ताकि एक यंग आदमी अगर उस कंटेंट को पढ़े तो उसको नॉलेज भी मिले, प्लस उसको यू नो ही डजंट गेट बोर्ड, या उसको बहुत हैवी ना लगे वो पीस ऑफ न्यूज। तो बेसिकली उसको एजुकेशन या अवेयरनेस मिल रही है, उसको न्यूज मिल रही है, बट इन अ वेरी बहुत ही एक आसान तरीके से मिल रही है। तो आई थिंक हम वो थोड़ा अलग तरीके से कर पाते हैं, थोड़े इजी तरीके से कर पाते हैं यंग जनरेशन के लिए, स्पेशली मिलेनियल्स और जेनजी के लिए, जहां उन्हें न्यूज पढ़ने का भी शौक है, लेकिन उनको अपने स्टाइल में पढ़ने का शौक है। उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से न्यूज आती है, या तो वो उनके सर के ऊपर से निकल जाती है, या उनको वो बहुत ही बोरिंग और टेक्निकल लगती है। तो हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज आई थिंक हमारा यूएसपी। Any questions from the audience? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जूही जी से? यू कैन सी शी इज सच अ यंग पर्सन, और ऑफ कोर्स मोटिवेशन तो मिल रहा है ना कि यू कैन आल्सो स्टार्ट. Yes or no? 27 years of age, and of course you have such you are yet to reach 27. तो आप लोगों के लिए encouragement होगा ही जूही जी को देखकर. Yes or no? Miss Juhi, what is the difference between manufacturing and service? I mean, जैसे हम लोग बात करते हैं, so what is the difference you find there? No, I mean, since you are into service industry, so which you think is more better for survival, especially in terms of investment? Because जितने भी हमारे audience यहाँ पे हैं, they are more into, you know, want to know कि less investment में कहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं. तो इसमें मैं आपसे पूछूंगी which is more better, going for a manufacturing? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें या अपने टैलेंट के बेसिस पे कुछ भी स्टार्ट करने की बात करें, तो वो तो क्लियरली सर्विसेज होता है। एनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या क्रिएशन ऑब्वियसली रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्स you know, product packaging, ye wo, there's so many steps involved in it. Even the kind of the number of people you require to put the product together and put it up in the market, उसमें काफी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर्विसेज इंडस्ट्री आप एक सिंगल पर्सन एंटरप्रेन्योर की तरह स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्टली सर्विसेज इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हाँ, उसकी स्केलेबिलिटी भी, मतलब आप उसको बहुत बड़ा नहीं बना सकते हैं, वो 200-400 करोड़ का बिजनेस नहीं बन सकता जनरली जब तक आप उसमें बहुत सारे लोग नहीं ऐड करते। लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बिकॉज एक तो वो आपके टैलेंट के ऊपर बेस्ड है, आपको कहीं बाहर जाके किसी और के टैलेंट के बेसिस पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट के अंदर जो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, वो सर्विसेज में काफी कम होती है। क्लियरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज इज मच इजियर, बट सर्विस में एक ड्रॉबैक बस ये रहता है कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मार्केट में, वो बहुत जरूरी है। दूसरों को कैसे पता चले कि आपकी सर्विस बेटर है, जब तक वो यूज नहीं करेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा, और अगर मतलब बिना यूज करे उनको समझ नहीं आएगा आपकी सर्विस क्या है, वो अलग क्यों है। तो इट्स मोर लाइक अ कैश 22 सिचुएशन। इसलिए सर्विस में इनिशियली अपने कस्टमर्स बनाना थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, सामने होता है, कन्विंसिंग ज्यादा इजी होती है कि अच्छा ये चीज है, इसको ऐसे यूज करेंगे, एक वीडियो बना दी, लोग समझ जाते हैं। सर्विस में यही थोड़ा सा एक चैलेंज होता है, टू गेट योर फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स, उनको कन्विंस करना कि आप क्यों अलग हैं या आपको क्यों यूज करना चाहिए। लेकिन जब वो एक बार यू नो बॉल रोलिंग हो जाती है, उसके बाद आपके टैलेंट के ऊपर, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ऊपर जाएं। इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली दिस इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर बिजनेस। So now I think you got the answers. Everybody was asking me about less investment का business क्या कौन सा है, right?
So even Ms. Juhi also agrees that service industry is better. Ms. Juhi, one last question. क्या टिप देना चाहेंगे हमारे participants को कि how they can be more successful? I think मैंने already बातों में बोल दिया. I don't want to give too many tips, but दो चीज़ें थोड़ा मैं strongly believe करती हूँ. एक वही जो अपने business start करने से पहले please बाहर जाके जितना exposure है उतना लीजिए, जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखिए. आप जब अपने बिजनेस में आएंगे आपको लगेगा आप खाली हो गए हैं, इतनी सारी नॉलेज आपने यूज कर ली है और आपको कहीं से नॉलेज पाने की जगह कम मिलती है अनलेस यू गो फॉर हायर एजुकेशन एंड आप डिफरेंट कोर्सेज एंड डिग्रीज करते हैं. लेकिन एजुकेशन के बाद आई फील एटलीस्ट 3-4 साल के लिए जरूर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जरूर काम करना चाहिए बाहर जाके डिफरेंट कंपनीज में. वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको कभी लाइफ में नहीं वापस आएगा, नंबर 1. नंबर 2, अगेन वही जो मैंने पहले बोला कि इमोशनल डिसीजन से ज्यादा हमें प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए. मार्केट में कस्टमर किस चीज के लिए पैसा देने को तैयार है उस टाइप का बिजनेस हमें सोचना चाहिए. हम जिस चीज से कन्विंस है वो एक तरफ तो है ही, डेफिनेटली हम उस पर लगे रहेंगे तो वी विल विन ओवर देयर ऑल्सो, लेकिन उसकी जर्नी थोड़ी सी लंबी हो सकती है. बट अगर आपका कस्टमर जो आपको बताता है सबसे पहले वो सुनिए. आपके हिसाब से वो गलत हो सकता है लेकिन कस्टमर इज किंग, स्पेशली सर्विसेज में कस्टमर इज किंग. तो थोड़ा सा पायलट करके, थोड़ा सा टेस्ट करके मार्केट में घुसिए. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक हल्का सा टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स जिसको कहते हैं वो जरूर करना चाहिए. एंड ये आप अपने जॉब के साथ साथ कर सकते हैं. जब आप जॉब कर रहे हैं तो एक छोटा सा आप पायलट करके देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट का. That's the only thing I'd like to say. Yeah, thank you so much. Yeah, who's that? Yeah. Question. Okay. She's supposed to go, I think. So thank you so much, Miss Juhi. Yeah, and as our tradition, we would like to appreciate your efforts and coming over here. I request Chandrasekhar sir to hand over the certificate of appreciation. Juhi madam, namaskar. Namaskar. Thank you so much. Chandrasekhar here. How are you? Very fine. So I know. We could see that. So we are now this is a physical program. I know. So we request you to accept our certificate of appreciation. Thank you so for the much. contribution you made it to the whole college sitting here for their entrepreneurship to start a business. Thank you, Chandrasekhar. Thank you. Please accept.